میں نے اس کے بدن سے نگاہیں چرا کر قالین پر گاڑ دی۔ یوں اس کی شعلہ بدنی سے جدا ہو کر مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ میں نے اپنے خیالات مجتمع کیے اور کہا، میڈم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو کچھ میرے علم میں ہے میں آپ کو صاف صاف بتا دوں گا۔ آپ بھی وعدہ کریں کہ مجھ پر شک نہیں کریں گی۔ میڈم نادیہ نشیلے انداز میں مسکرائی۔ مردوں پر شک نہ کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ بہرحال تم کہتے ہو تو یہ بیوقوفی کر لیتے ہیں۔ میں ثابت کر دوں گا کہ آپ نے بیوقوفی نہیں کی۔ میں نے پورے وسوخ سے کہا اور اپنی روداد کو بالکل شروع سے بیان کرنے لگا۔ میں نے میڈم نادیہ کو بتایا کہ کس طرح قریباً 1.5 سال پہلے واجی اور اس کے اوباش دوست میری منگیتر ثروت کے پیچھے پڑے، کس طرح انہوں نے میرا اور ثروت کا جینا حرام کیا۔ پھر ثروت کے اغوا اور واپسی کی تفصیل بتانے کے بعد میں نے اس حوالے سے واجی کے باپ سیٹھ سراج کے منفی کردار کا ذکر کیا۔ بعد ازاں سیٹھ سراج اور اس کے کارندوں نے میرے گھر کے قریب مجھ پر جو بہیمانہ تشدد کیا اس کی تفصیل بیان کر دی۔ میڈم نادیہ دھیان سے سنتی رہی اور بیچ بیچ میں مجھ سے سوالات بھی کرتی رہی۔ میں نے میڈم سے کہا، میں سچ کہتا ہوں میں سخت مایوس تھا، اپنی جان لینے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اگر عمران مجھے نہ ملتا تو شاید میں اس وقت آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ عمران میری کہانی سن کر بہت دکھی ہوا، خاص طور سے سیٹھ نے میرے ساتھ جو مار پیٹ کی تھی اس کا اسے بہت صدمہ پہنچا۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے سیٹھ سراج کو تھوڑا سا سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے سیٹھ صاحب کی گاڑی سے ایک وین نے ٹکر لی تھی، بعد میں وہاں لڑائی بھی ہوئی تھی۔ ویری گڈ، بہت خوب۔ میڈم نے تنبیہی انداز میں سر ہلایا۔ تو وہ طے شدہ ایکسیڈنٹ تھا۔ ویری اسمارٹ۔ دراصل یہی ایکسیڈنٹ تھا میڈم جس کے بعد ہم سیٹھ سراج کے پیچھے لگے۔ یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا۔ سیٹھ سراج کی گاڑی میں کچھ بوریاں رکھی ہوئی تھی، ان میں سے چند بوریاں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پھٹ گئی۔ اس کے بعد میں نے بوریوں کے بارے میں سارا ماجرا میڈم کے گوش گزار کر دیا اور بتایا کہ صرف ان بوریوں سے پیدا ہونے والا تجسس دور کرنے کے لیے ہم نے سیٹھ سراج کا پیچھا کیا اور ہڑپا پہنچ گئے۔ آگے کی ساری روداد میڈم کو زلیخا اور اس کے شوہر سے معلوم ہو چکی تھی۔ وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ زلیخا اور اس کے شوہر کی زبان سے ہم نے لال کوٹھیوں کا ذکر سنا اور پھر اپنے تجسس کے گھوڑے پر بیٹھ کر دگڑ دگڑ کرتے ہوئے لال کوٹھیوں تک پہنچ گئے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، یہاں تک تو سب کلیئر ہو گیا۔ تم لوگ اس شوق میں یہاں گھس آئے کہ شاید یہاں سے تمہیں بیش قیمت تحائف مل سکیں گے۔ 1 کروڑ 2 کروڑ کی مورتیاں، 3-4 کروڑ کی تصویریں اور اس طرح کی دوسری چیزیں، برتن، زیور وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ تم لوگ اچانک روپوش ہو گئے۔ روپوش اور خاموش تو تم لوگ تب ہوتے جب یہاں سے کچھ لے جاتے، مگر تم تو خالی ہاتھ گئے تھے۔ پھر تمہاری غیر حاضری کیوں لگ گئی؟ دراصل ہم ڈر گئے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہمیں کچھ دیر خاموش رہنا چاہیے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ VTR سسٹم میں ہماری تصویریں آ گئی ہوں گی اور ہمیں پہچان لیا جائے گا۔ تمہاری یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ میں تمہارے بارے میں تو ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ تمہارا ہیرو بھائی بڑا خراٹ شے ہے۔ یقین نہیں آتا کہ وہ ہمارے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی خاموش رہا ہوگا۔ اس کے دماغ میں کھجلی نہیں ہوئی ہوگی۔ میڈم بات تو ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اب میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھا رہا؟ کس سوچ میں کھو گئے ہو؟ میڈم نے بڑی تکلفی سے میرے گال پر انگلی چلاتے ہوئے کہا، یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کو میری بات کا یقین آیا کہ نہیں۔ اچھا، سلیم لنگڑے نے تم لوگوں سے کیا کہا تھا؟ اس نے ہمیں ڈرایا ہی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نے لال کوٹھیوں میں گھس کر سخت غلطی کی ہے، ہم بری طرح پھنس سکتے ہیں، ہمیں آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جواب دینے کے بعد میں نے میڈم نادیہ کے چہرے پر اچٹتی سی نظر ڈالی۔
وہ میرے جوابات سے 100% مطمئن تو نہیں تھی، پھر بھی اس کا ذہن کچھ نہ کچھ صاف ضرور ہوا تھا۔ حوصلہ پا کر میں نے وہ سوال کیا جو دیر سے میرے اندر مچل رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا میں آپ سے ہیرو بھائی کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو۔ اس نے ادا سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی تو اس کے جسمانی خطوط اور بھی ہوشبہ ہونے لگے۔ میرا مطلب ہے وہ خیریت سے تو ہے؟ بہت چاہتے ہو ہیرو بھائی کو؟ میں خاموش رہا۔ وہ بولی، ویسے وہ ہے بھی چاہے جانے کے قابل، لیکن اکڑ گھوڑے کی طرح ہے، اس پر کاٹھی ڈالنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی۔ کیا تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ تمہارا دوست ہے، تم ہر وقت اکٹھے رہتے ہو، تمہیں اس کی مزاج کی ہر سردی گرمی کا پتہ ہوگا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں وہ میرے بیڈ روم میں ہو، بالکل گرم، جوش سے بھرا ہوا، وہ مجھے اور میں اسے جھنجھوڑ کر رکھ دوں۔ وہ بڑی بے باکی سے بولی۔ اس کی ہلکی بادامی آنکھوں میں عجیب سی تپش کروٹیں لے رہی تھی۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس کی آنکھوں کی کیفیت دیکھ کر میں نے نگاہ جھکا لی۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں صاف صاف کہہ دیتی، اور سچ یہی ہے کہ تمہارا یہ ہیرو بھائی میرے دل میں ٹھا کر کے لگا ہے، اور جو چیز میرے دل کو بھا جاتی ہے پھر میں اسے حاصل کیے بغیر نہیں رہتی۔ تم لوگ اچانک میرے گھر سے نکل گئے، ہیرو بھی نکل گیا، پر وہ باسٹرڈ میرے اندر سے نہیں نکل سکا۔ میں نے پچھلے دنوں اس کے لیے بڑی بے چینی محسوس کی ہے اور اسے اپنے طور پر ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتی رہی۔ بس اسی میری لک سمجھ لو کہ کل رات میرے ملازموں کو اچانک اس کی گاڑی نظر آ گئی۔ کیا میں فکرہ مکمل کرنے سے پہلے ہی خاموش ہو گیا۔ وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ معاملہ فہم انداز میں بولی، میرے خیال میں تم پوچھنا چاہ رہے ہو کہ تمہارے ہیرے بھائی کو ہم نے کیسے کیچ کیا، تو پوچھ لو۔ دراصل میرا ذہن صاف ہو جائے گا تو میں بہتر طور پر سوچ سکوں گا اور آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں گا۔ آ جاؤ میرے ساتھ، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا اس کے بدن سے نگاہیں چراتا اس کے اسی بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس رات کے سارے واقعات ذہن میں تازہ ہو گئے۔ جب ہم چوری چھپے یہاں گھسے تھے اور نادیہ کو باندھ کر بے بس کیا تھا۔ دائیں طرف وہ خوبصورت اٹالین الماری تھی جو سلیم کے بقول میڈم نے اس لیے کھولی تھی کہ ہمیں شراب کی بوتلیں دکھا سکے۔ سامنے ہی وہ جہازی سائز کا بیڈ تھا جس پر عمران اور میڈم نادیہ کی دیگا مشتی ہوئی تھی، اور عمران نے مشتعل ہو کر نیم ریا نادیہ کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ سلیم نے بتایا تھا کہ اس بیڈ روم کی ایک سائڈ پر ایک نیلا بٹن ہے جسے دباتے ہی نادیہ درجن بھر گارڈز کو دوسری کوٹھی سے طلب کر سکتی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ بیٹھ جاؤ، نادیہ نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں کسی معمول کی طرح بیش قیمت صوفے کے گداس میں دھنس گیا۔ وہ تکیے کے سہارے بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ سامنے دیوار پر ایک ٹی وی سکرین نظر آ رہی تھی۔ نادیہ نے ریموٹ کنٹرول سے سکرین روشن کی، پھر کئی ایک بٹن دبائے۔ کچھ دیر بعد سکرینوں پر وی ٹی آر کی ایک پرانی فوٹیج چلنے لگی۔ یہ اس رات کے مناظر تھے جب میں، عمران اور اقبال یہاں داخل ہوئے تھے۔ ایک منظر میں اقبال رائفل بدست باتھ روم کے بند دروازوں کے سامنے ٹہل رہا تھا۔ ایک منظر میں ہم پرچھائیوں کی طرح اس نیم تاریخ گیلری میں گھوم رہے تھے جہاں نہایت نایاب پینٹنگز کی دیواروں پر سجی تھی۔ پھر باؤنڈری وال کا منظر دکھائی دیا۔ باؤنڈری وال سے باہر عمران کی مہران گاڑی کھڑی تھی۔ غالباً میڈم نادیہ نے بٹن دبا کر گاڑی کی فوٹیج کو سکرین پر ساکت کر دیا۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس تم لوگوں کا بس یہی سراغ تھا، مگر تم دیکھ رہے ہو گاڑی کی پوزیشن ایسی ہے کہ نمبر پلیٹس نظر نہیں آ رہی۔ اگر گاڑی کا نمبر نظر آ جاتا تو شاید دوسرے تیسرے روز ہی ہماری تمہاری ملاقات ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، گاڑی کی ایک دو نشانیاں ضرور اس فوٹیج میں ریکارڈ ہو گئی۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ
गाड़ी की छत पर कैरियर लगा हुआ है। अब दूसरी निशानी देखो, नादिया ने कहा और स्क्रीन पर नजर आने वाली गाड़ी की छवि को क्लोज किया। गाड़ी की साइड पर इमरान ने या इकबाल ने एक तवील स्टिकर चिपकाया हुआ था। ये एक जस्त लगाते हुए चीते की छवि थी और नीचे अंग्रेजी के चंद हरूफ थे। स्टिकर जुज़वी तौर पर उतर चुका था और हरूफ भी मिटे मिटे थे। बहरहाल ये सब कुछ फुटेज में दिखाई जरूर दे रहा था। नादिया ने टीवी स्क्रीन को ऑफ किया और बोली, मेरे मुलाजिम इस गाड़ी की टोह में थे। कल रात इत्तफाकन मेरे एक मुलाजिम शौकत को ये गाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी नजर आई। इसने साथियों को फोन किया। तुम्हारे हीरो भाई के आने से पहले ही गाड़ी को घेरा जा चुका था। अब आगे की बात तो तुम समझ ही गए होगे। वो खैरियत से है ना? मेरा मतलब है आपने मारपीट तो नहीं की? मैंने पूछा। मैंने तो नहीं की, लेकिन मेरे गार्ड्स को उस रात वाले वाक़े पर गुस्सा था। उन्होंने मेरे पहुंचने से पहले ही 2-4 हाथ लगाए थे। बहरहाल परेशानी की बात नहीं, वो अब खैरियत से है। ये बात तो हरगिज मानने वाली नहीं थी कि गार्ड्स ने मैडम नादिया की मर्जी के बगैर ही इमरान से मारपीट की होगी। वो यकीनन तजाहल आरफाना से काम ले रही थी। मेरे तस्वुर में इमरान का जख्मी चेहरा और इसका फटा हुआ लिबास घूमने लगा। मैंने बड़ी बेचैनी से सवाल किया कि वो कहाँ है और किस हाल में होगा। मैं ये भी जानना चाहता था कि वो आसानी से बेबस होने वाला नहीं, यकीनन इस पर प्लानिंग से हाथ डाला गया था। अब मेरे जहन में ये सवाल किलबिला रहा था कि सलीम के बारे में नादिया को शक क्यों कर हुआ। ये सलीम ही था जिसकी वजह से हम भी फंस गए थे। मैंने मुहतात लफ्जों में इस बारे में पूछा तो वो बोली, लगता है कि तुम अपने जहन को पूरा पूरा क्लियर करने पर तुले हो। चलो भाई, कर लो क्लियर। इसने एक बार फिर टीवी स्क्रीनों पर VTR को घुमाया और कुछ ढूंढने लगी। जल्द ही मतलूबा फुटेज इसे मिल गई। ये भी उस रात की फुटेज थी जब हम पहली बार लाल कोठी में आए थे। पोशीदा कैमरा एक खाली राहदारी को दिखा रहा था। ताहम गौर से देखने पर अंदाजा होता था कि राहदारी बिल्कुल खाली नहीं है। राहदारी के नीम रोशन फर्श पर 3 साए नजर आ रहे थे। इनमें एक साया वाज़ेह तौर पर सलीम का और दूसरा शायद इमरान का था। नादिया ने फुटेज को एक जगह स्टिल कर दी और बोली, गौर करो, ये क्या है? मैं खामोश रहा तो वो वजाहत करते हुए बोली, इनमें से दरमियान वाला तो सलीम लंगड़ा है, दाईं तरफ तुम्हारा हीरो भाई है और बाईं तरफ शायद तुम हो। तुम तीनों राहदारी से बाहर खड़े हो, मगर तुम्हारी परछाइयां राहदारी के फर्श पर पड़ रही हैं। आप क्या बताना चाह रही हैं? मैं सलीम की बेटलक बताना चाह रही हूँ। बड़ा होशियार है। इसे मालूम है कि कोठी में VTR कैमरे किस किस जगह फोकस करते हैं और कौन कौन सी जगह इनकी पहुंच से दूर है। इसलिए जब इसने तुम दोनों से राजदारी के साथ बात की और तुम्हें कोठी से बाहर निकलने का मशवरा दिया तो वो ऐसी जगह खड़ा था जहां कैमरा तुम तीनों को तो नहीं देख सकता था और ना ही माइक्रोफोन कोई आवाज कैच कर सकता था। लेकिन इसकी बदकिस्मती के तुम तीनों के सामने राहदारी में पड़ रहे थे। तुम तीनों के साए राहदारी में पड़ रहे थे और राहदारी को कैमरे की आंख देख रही थी। इन सायों वाली फुटेज पर मेरी नजर बस 2-3 दिन पहले ही पड़ी। इसके बाद मेरी हिदायत पर गार्ड बख्तियार ने सलीम पर गहरी नजर रखी हुई थी। यही वजह है कि वो जब तुम्हें हीरो की शामत की इत्तला देने रावी रोड पहुंचा तो तुम दोनों भी नजर में आ गए। बात खत्म करके नादिया ने शीरी के चंद और घूंट भरे और इसका चेहरा शराब की हिद्दत से तमतमाने लगा। इसकी हरकतों सकनात में अजीब सी तपश थी, जिसका हर हिस्सा अंगड़ाई लेता हुआ महसूस होता था। कहने लगी, तुम बहुत सवाल कर चुके हो, अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। जी कहें। हीरो इमरान साहिब को लड़कियां पसंद हैं? मैडम नादिया ने अचानक सवाल किया। मैं पहले तो गड़बड़ाया, फिर संभल कर बोला, मैंने आपको बताया है ना कि मुझे इसके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। सर्कस में काम करने वाली 1-2 लड़कियों के साथ इसका हंसी मजाक जरूर है। कोई पक्की गर्लफ्रेंड मेरे इल्म में तो नहीं।
ड्रिंक वगैरह करता है? एक दो बार बेर पीते देखा है। कोई खुफिया शादी वगैरह? मैंने एक बार भी लाइलवी में सर हिलाया। दरअसल इमरान अपने बारे में अपने दोस्तों को भी बहुत कम बताता है। इस मामले में वो जरा मुख्तलिफ टाइप का है। नहीं रहेगा मुख्तलिफ टाइप का। मैडम ने हल्की सी इंगड़ाई ली। सरकश घोड़ा है, बस जरा इसकी समझ में आ गई है तो एकदम शांत हो जाएगा। इशारों पर चलेगा और सरपट भागेगा। इसकी बादामी आंखों में एक बार फिर नशा तैरने लगा। चंद लम्हे खामोश रही, जैसे वो तसव्वुर ही तसव्वुर में इसे अपने इशारों पर चलता देख रही हो। इसके चेहरे पर अजीब सी राहत झलकने लगी। फिर वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, ये मत समझना कि अभी वो मेरे बस में नहीं है। मैं चाहूं तो वो अब भी सरपट भाग सकता है। जैसे भैंसों का दूध धोने के लिए इन्हें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इस तरह अड़ियल घोड़ों को सरपट चलाने के लिए भी जबरदस्त इंजेक्शन होते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। कम अज कम तुम्हारे हीरो इमरान के हवाले से मुझे ये बनावट बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। नॉट एट ऑल। मैं चाहूंगी कि वो पूरे होशो हवास के साथ अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और इसे महसूस भी करे। शायद सलीम ने ठीक ही कहा था। मैडम नादिया एक एबनॉर्मल लड़की थी। फिल वक्त इसकी तवज्जो का मरकज इमरान बना हुआ था। वो इसे तस्खीर करने के चक्कर में थी। शायद हमारे यहाँ पहुँचने से पहले वो इस सिलसिले में थोड़ी बहुत कोशिश कर भी चुकी थी। पता नहीं क्यों नादिया का रवैया देखकर मुझे एक तरह की तसल्ली भी हुई। इससे पहले मुझे और इकबाल को अंदेशा था कि इमरान के पकड़े जाने के पीछे जेहलम में मजीद मिट्ठू की हलाकत का वाकया है और नवादरात वाला मामला भी इस सारी सूरत हाल को गंभीर बना रहा है। मगर मैडम नादिया से बात करके पता चला कि सूरत हाल इतनी नाजुक नहीं जितनी हम समझ रहे हैं। मैडम नादिया ने सिर्फ इस रात वाले वाक़े को अना का मसला बनाया हुआ था। वो इमरान को शिकार करना चाह रही थी और अगर इस सारे मामले में इसे किसी पर हकीकी गुस्सा था तो वो सलीम पर था। वो इसे गद्दारी का मुर्तकिब समझ रही थी। इसके नजदीक सलीम का कसूर नाकाबिले माफी था। इसकी वजह न सिर्फ पहली बार हम तीनों लाल कोठियों से बचकर निकल गए थे, बल्कि दूसरी बार भी इसने मुझे और इकबाल को भगाने की पूरी कोशिश की थी। मुझे मेरे सरकश घोड़े के बारे में कोई टिप दो। वो सिगरेट सुलगाकर बोली, इस पर काठी डालने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए? मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, तुम क्या कह सकते हो? तुम घोड़ों के साइज तो नहीं हो, लेकिन तुम घोड़े तो हो। एक घोड़ा अपने साथी घोड़े के बारे में बहुत कुछ जानता है। मैंने गहरी सांस ली। शुरू में मैं काफी खौफजदा था, मगर अब नादिया का रवैया और इसका नस्बुल ऐन जानने के बाद मैं खुद को काफी इजी महसूस कर रहा था। मैंने कहा, मैडम, मैं कोई नफ्सियात दान तो नहीं हूँ और ना ही मुझे दावा है कि मैं इमरान को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, वो अपने दोस्तों के बारे में बहुत टिची है। क्या कहना चाहते हो? मैंने अंदाजा लगाया है कि सलीम के बारे में आपका रवैया बड़ा सख्त है। कुछ देर पहले इसके साथ काफी मारपीट हो चुकी है और लगता है कि आप इसे कोई कड़ी सजा देने वाली हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करके गलत करेंगी। अपने नुक्ता नजर से आप सही हैं, लेकिन अगर आप इसे मुआफ कर सकें तो इमरान पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वेरी गुड। तुम्हारा मतलब है कि इमरान को राह रास्त पर लाने के लिए सलीम को इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ। तो फिर क्यों ना इसको जरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। नादिया का लहजा बदल गया। मैंने चौंक कर इसे देखा। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली, हो सकता है सलीम को माफी देने का तुम्हारे हीरो साहिब पर वो असर ना हो जो इसे सजा देने का हो। सलीम को सख्त सजा से बचाने के लिए भी तो वो अपनी सरकशी खत्म कर सकता है। और फिर इसने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम भी तो इसके दोस्त ही हो। आजकल इमरान के दिल में
तुम्हारे लिए खुसूसी हमदर्दी जागी हुई है। पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि वो इतनी सीधी और आसान नहीं जितनी नजर आती है। इसके लहजे में मेरे लिए एक खतरनाक धमकी पोशीदा थी। वो मेरे बदले हुए तासुरात को देखकर जल्दी से बोली, नो नो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक पत्थर से दो परिंदे शिकार करना। मैं भी यही करूंगी। अगर मैंने इस्तेमाल करना हुआ ना तो स्लिम लंगड़े हुई को कोई करूंगी। इसको सजा भी मिलेगी, तो हो सकता है कि इसकी सजा से तुम्हारे हीरो साहिब की दौलतियां भी खत्म हो जाएं। मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह सटपटाया और पिछताया भी कि मैंने ऐसी बात क्यों कही। इसने फौरन मेरी ये बात पकड़ ली थी कि इमरान अपने दोस्तों के बारे में बड़ा टिची है। इमरान की मुसीबत के ख्याल ने मुझे अदमुआ सा कर दिया। बंदा जिसको नाकाबिल शिकस्त समझता है और जिसकी सलाहियतों पर पूरा ज्यादा एतमाद होता है, वो अचानक किसी वजह से बेदस्तोपा नजर आए तो दिल को शदीद ठेस लगती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इमरान यहाँ मैडम नादिया की गिरफ्त में आ चुका है और इसे बेबस करके मारा पीटा गया है। इमरान को परेशानी और बेबसी की हालत में देखने का तस्वुर ही मुझे हलकान कर रहा था। मैंने डरते डरते नादिया से पूछा, क्या मैं इमरान को देख सकता हूँ? क्यों नहीं, अभी लो। इसने बेड पर लेटे लेटे बड़े साइज के रिमोट कंट्रोल पर 2-3 बटन प्रेस किए। एकदम स्क्रीन पर इमरान मेरे सामने आ गया। इसके साथ ही मेरा दिल उछलकर रह गया। वो एक कालीन पर बैठा था। इसने दीवार से टेक लगा रखी थी। ये इसी लाल कोठी का कोई कमरा नजर आता था। इमरान के चेहरे पर गहरे नील थे, दोनों आंखें वर्मज़दा थी। इसके एक हाथ पर पट्टी बनी हुई थी। वो एक ऐसी खिड़की के पास बैठा था जिस पर आहनी ग्रिल थी। ग्रिल के पास एक मोटी मुलाजिमा खड़ी थी। इस मुलाजिमा को हम पिछली बार भी देख चुके थे। यही थी जिसने रूटीन में कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था और इमरान ने मुझे बाहर से बुलवाकर दरवाजा खुलवाया था। इसका नाम आसिया था। मैंने देखा इमरान के चेहरे पर तकलीफ का साया है और बेचारगी के अंदाज में मुलाजमा से आसिया से कुछ कह रहा था। शायद वो इससे किसी तरह की मदद तलब कर रहा था। इमरान को इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैडम नादिया ने कहा, आवाज भी सुनना चाहते हो इमरान साहिब की? फिर मेरे जवाब पर देने से पहले ही इसने साइड टेबल के पास कोई बटन प्रेस किया और स्क्रीन पर तस्वीर के साथ आवाज भी उभरने लगी। आवाज ज्यादा साफ नहीं थी, लेकिन सुनी जा सकती थी। इमरान कह रहा था, मैं सच कह रहा हूं आसिया जी, औरत की खूबसूरती मोटे या पतले होने में नहीं होती, इसके चेहरे में होती है। और तुम्हारा चेहरा 101% मेरी मंगेतर रोजीना से मिलता है। आज अगर रोजीना जिंदा होती तो हूबहू तुम्हारी तस्वीर होती। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें देखकर मेरे सारे जख्म हरे हो गए हैं, हरे भी और लाल सुर्ख भी। लगता है तुम्हें बकवास करने की आदत है। करीब खड़े एक गार्ड ने झिड़क कर कहा, आदत नहीं है यार, मैं तो इतना खामोश तबाह हूं कि कभी बोलूं तो यार दोस्त समझते हैं कि शायद आज कोई त्योहार है। ये तो आपकी बहन को देखकर बोलना पड़ रहा है। यकीन करो, मैं तुम्हें अपनी रोजीना की तस्वीर दिखाऊं तो तुम भी हक्का बक्का रह जाओगे, और आसिया जी तो समझेगी कि आईना देख रही हैं। गार्ड दांत पीसकर बोला, मैं एक बार मैडम से इजाजत ले लूं, फिर तुम्हारी बोलती ऐसी बंद करूंगा कि क़यामत तक आवाज नहीं निकलेगी। तो अब और क्या क़यामत होगी? मेरे लिए तो क़यामत आ चुकी है मेरे बरादर। इसने यकसर फिदा हो जाने वाली नजरों से मुलाजिमा आसिया को देखा। आसिया के हाथ में सफेद रुई थी और शायद कोई दवा थी। वो गालिबन इमरान के चेहरे पर जख्म साफ करने के लिए आई थी। झुंझलाकर बोली, तुम्हें दवा लगवानी है या नहीं? तुम अपने हाथ से लगाओगी तो कौन काफिर इनकार करेगा? लेकिन मुलाजिमा ने सर पटाकर
प्लास्टिक की बोतल और रुई वगैरह आहनी ग्रिल के रास्ते कमरे में फेंकी और अपने भारी जिस्म को हलकोरे देती हुई चली गई। मैडम नादिया ने रिमोट के जरिए स्क्रीन को तारीख कर दी और मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम्हारा हीरो दिलचस्प शय है, इतनी मार खाकर भी शर्मिंदा नहीं है। मैं बस सर हिलाकर रह गया। दिली तौर पर मुझे वाकई मुसर्रत हुई थी। बेशक इमरान को मारा पीटा गया था, लेकिन ये मारपीट इसके चेहरे से इसकी जादुई मुस्कुराहट छीनने में कतई नाकाम रही थी। कहीं पड़ी हुई ये बात याद आने लगी कि इंसान अपना हौसला नहीं हारता, वो कुछ भी नहीं हारता। पता नहीं क्यों इमरान को हशाश बशाश देखने के बाद मैं खुद को भी वैसा ही महसूस करने लगा। इसी दौरान में फोन की घंटी बजने लगी। नादिया फोन सुनने के लिए साइड रूम में चली गई। मैं वहीं बैठा रहा। सामने शीशे की नहायत नफीस तपाई पर अंग्रेजी अखबार रखा था। यह आज का ही था। मैं इसकी वर्क गर्दानी करने लगा। अंदरूनी सफ़े पर एक खबर मेरे लिए काबिल तवज्जो थी। ये 3 दिन पहले जहलम में पेश आने वाले वाक़े से ही मुतल्लिक थी। 2 कालमी खबर की सुर्खी थी, रोड एक्सीडेंट में मजीद मिट्टू की हलाकत इत्तफाकिया नहीं थी। नीचे दर्ज था, पुलिस तफ्तीश में मजीद मिट्टू की हलाकत के बारे में कुछ नए हकायक सामने आए हैं। अंदाजा होता है कि खाई में गिरने से पहले मजीद की कार किसी और गाड़ी से टकराई थी। जाए हादसा से कुछ फासला पर सड़क के ऊपर भी तबाह होने वाली गाड़ी के शीशे मिले हैं और टायरों के निशान भी। तफ्तीशी पुलिस अफसर के मुताबिक दोनों तरह के इम्कान मौजूद हैं। ये इत्तफाकी हादसा हो सकता है और किसी अदावत का शाखसाना भी। इसी दौरान में मैडम नादिया अपनी उड़िया टांगों को बड़े स्टाइल से हरकत करती हुई वापस आ गई। शायद फोन पर किसी से कोई तल्ख बात हुई थी। वो कुछ बरहम नजर आती थी। थोड़ी देर तक वो बिस्तर पर नींद दराज होकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती रही। इस कोशिश में इसने शीरी का एक और गिलास पिया। इसके अलावा इम्पोर्टेड सिगरेट के चंद गहरे कश भी लिए। तब वो मुझे देखती हुई बोली, मिलना चाहोगे इमरान से? अगर आप पसंद करें तो। मैंने कहा, आओ मेरे साथ। वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मैं एक बार फिर इसके पीछे चल दिया। मैं जानता था कि इस इमारत में हर जगह कैमरे मौजूद हैं और डक्टाफोन भी लगे हुए हैं। दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता था कि नादीदा कान हमें सुन रहे हैं और नादीदा आंखें देख रही हैं। इस इमारत में जगह जगह पेंटिंग्स और नवादरात की सजावट नजर आती थी। राहदारियों में कीमती कालीन थे और ये सारी जगह सेंट्रली एयर कंडीशन थी। जल्द ही हम एक मुस्ततिल कमरे में पहुंच गए। सामने ही वो दीवार गिर आहनी ग्रिल थी, जिसकी दूसरी तरफ इमरान मौजूद था। ग्रिल के साथ जाली नहीं थी, इसलिए छोटी मोटी अशिया ग्रिल में से कमरे में पास की जा सकती थी। इमरान गालिबन सियाल आयोडीन के जरिए अपने चेहरे के जख्म साफ कर रहा था। इसके लिए वो अपना बायां हाथ इस्तेमाल कर रहा था। दायां हाथ पट्टी में जकड़ा हुआ था। मुझे देखकर वो ज्यादा चौंका नहीं। यकीनन वो यहाँ हमारी आमद से आगाह हो चुका था। मुझे देखकर इसने मगमूम चेहरे के साथ एक लंबी आह भरी। अच्छा हुआ ताबी, तुमसे मुलाकात हो गई। अब मैं सुकून से मर सकूंगा। वो बड़ी संजीदगी से बोला। मरे तुम्हारे दुश्मन, नादिया बोली। कहते सब हैं, मरता कोई नहीं। वो तुरंत बोला, यानी मैं तुम्हारी दुश्मन हूं? मैंने ये कब कहा? अपना सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं खुद हूं। आशिक खुद ही अपना दुश्मन होता है। मजनू, रांझा, फरहाद, इनमें से कौन ऐसा है जिसने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी? आशिक का शुरू से एजेंडा हिलाक होने का होता है। मैं समझ गया हूं कि अब मुझे भी मरना है, इस मुछेल गार्ड के हाथों या फिर अपने ताया अब्बा के हाथों। मुछेल गार्ड वही था जिससे जरा पहले इमरान की तलखी हुई थी। मुछेल गार्ड और ताया अब्बा, ये क्या बात हुई? नादिया ने इमरान की गुफ्तगू में दिलचस्पी लेते हुए कहा। गार्ड साहिब के हाथों मरने के इम्कानात ज्यादा रोशन है कि मैं इनकी बहन से इश्क फरमाने से पास नहीं आता और वो मुझे शूट करने से पास नहीं आएंगे। अभी आपके आने से पहले हम दोनों में एक झड़प भी हो चुकी है
और तायाबा वाली बात यह है कि वो हरफन मौला होने के अलावा बड़े सख्त किस्म के मजहबी हैं। मैं जब इन्हें बताऊंगा कि मेरी मरहुमा मंगेतर रोजीना लाल कोठी की नहायत दिलकश और चरबीली मुलाजमा आसिया की सूरत में वापस आ गई है, तो इन्हें शदीद झटका लगेगा। वो समझ जाएंगे कि मैं आवागोन पर यकीन करने लगा हूँ। बस इसी बात पर वो मुझे कत्ल फी सबीलिल्लाह कर देंगे। जब तुम्हें मरना ही है तो फिर किसी के काम क्यों नहीं आ जाते बास्टर्ड? नादिया अजीब नशीले अंदाज में बोली। काम तो मैं इसी के आ सकता हूँ जिससे मुझे आनन फानन इश्क हुआ है। अपनी इस चरबीली मुलाजमा को मेरे हवाले कर दो। 3-3.5 साल के अंदर ही 4 हट्टे कट्टे बच्चे पैदा ना करूं तो मुझे हीरो ना कहना। इमरान बड़े यकीन के साथ सीने पर हाथ रखकर बोला, 3-3.5 साल में 4 बच्चे? नादिया भवें उचकाई। 20 ओवरों में आजकल 200 स्कोर होता है, तो 3.5 साल में 4 बच्चे क्यों नहीं हो सकते? मेरे ख्याल में तो 5 भी हो सकते हैं। जुड़वा बच्चों का चांस भी तो है ना। नादिया ने इमरान को घूर कर देखा, फिर इसकी बादामी आंखों में एक जहरीली चमक उभर आई। वो लंबी सांस लेकर सोफे पर बैठ गई और बोली, लगता है कि तुम्हें क्रिकेट से काफी दिलचस्पी है। चलो एक 20-20 मैच तुम्हें मैं दिखाती हूँ।